اشال کو لڑکے والے دیکھنا ہے۔ معاملہ بہت اچھے سے انجام پایا۔ فہیم بھائی بیوی بچوں اور اماں سمیت وہاں جا چکے تھے۔ لڑکے کی والد والدہ اور بھائی بھابھی دیکھنے آئے تھے، ساتھ طارق صاحب کے وہ دوست جس کے توسط سے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اشال کچھ اداس اور مغموم سی تھی، لیکن موقع ایسا تھا کہ سب نے اس کی حالت کو شرم اور جھجک سے معمور کیا۔ لڑکے کے گھر والوں کے تاثرات میں پسندیدگی جھلک رہی تھی۔ طارق صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سکون کا سانس بھرا۔ بہت شکریہ آپا، آپ کے آنے سے بہت تسلی ہوئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد طارق صاحب فرحت بیگم سے بولے تھے۔ کیسی باتیں کرتے ہو، اشال بیٹی ہے میری۔ فرحت بیگم نے انہیں مصنوعی خفگی سے دیکھا۔ ان کے لہجے میں سچائی تھی، شاید یہ انہیں بھی سمجھ آ گیا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور اشال اور فرحت کا جوڑ تھا ہی نہیں۔ اشال۔ سب کے جانے کے بعد اشال خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ فہیم بھائی اس کی خاموشی سمجھ رہے تھے۔ وہ جو کھڑکی سے باہر نظریں جمائے جانے کہاں گم کھڑی تھی، ان کے پکارنے پر چونکی۔ جی؟ وہ سنبھل کر فہیم بھائی کو دیکھ کر بولی۔ کیا ہوا، اتنی خاموش کیوں؟ بس ویسے ہی دل اداس ہو رہا ہے۔ کہیں پچھتا تو نہیں رہی اپنے فیصلے پر؟ انہوں نے اپنے خدشے کا بلا جھجک اظہار کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن کچھ وقت تو لگتا ہے نا۔ اشال کا لہجہ جو شروع میں حتمی تھا آخر میں کچھ افسردہ ہو گیا تھا۔ بالکل، لیکن یہ وقت صرف کچھ وقت ہی رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ فہیم بھائی نے ذومانی انداز میں اسے باور کروانا چاہا۔ ان کی بات پر اشال مسکرا کر رہ گئی۔ اس کے مسکرانے پر انہیں تسلی ہوئی کہ وہ اس کا سر تھپتھپاتے باہر نکل آیا، سیدھا لان میں پہنچا اور فرحات کو فون گھمایا۔ لو بھائی فرحات صاحب، یہ کام تو کر دیا ہم نے تمہارا۔ اماں کا موڈ بھی بدل رہا ہے، اب تم پر صرف اپنی بیوی کو منانا رہ گیا ہے۔ بات کہاں تک پہنچی؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہی وہ شروع ہوئے تھے۔ دراصل وہ خود بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے، معاملہ اس طرح سلجھ جائے اتنی جلدی امید نہیں تھی، لیکن کیا پتا، انہیں کیا پتا تھا جن دونوں کے لیے سب ہو رہا تھا وہ خود ہی اپنا معاملہ بگاڑ چکے تھے۔ اچھا؟ فرحات کے یک لفظی جواب پر انہیں حیرت ہوئی۔ کیا مطلب اچھا؟ بات سنیے پوری، کیا آواز آ رہی ہے؟ انہیں لگا شاید کنیکشن میں کچھ مسئلہ ہو، جس کی وجہ سے اب اسے آواز نہیں گئی، کیونکہ جو فرحات اتنے جوش میں یہاں سے گیا تھا وہ ان کی بات کا یہ جواب تو نہیں دے سکتا تھا۔ جی آ رہی ہے، وہ دھیمے انداز میں بولا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ فہیم بھائی کو اس کا لہجہ چونکا گیا۔ جی خیریت ہے سب۔ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، یہ نہ ہو لڑکے میں یہاں سب کے دماغ بدل رہا ہوں اور تم دونوں اپنا ہی کچھ اور شروع کیے بیٹھے ہو۔ فہیم بھائی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ کچھ نہیں، بس وہ اپنی ضد پر قائم ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آرام سے مناؤ، بلکہ پہلے ولیمہ کر لیتے ہیں، یہ کام تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا۔ فہیم بھائی نے اسے سمجھایا۔ وہ جا چکی ہے۔ کیا مطلب، کہاں چلی گئی ہے؟ وہیں جہاں تھی۔ لیکن کیوں؟ تم نے تو بتایا تھا کہ اب یہاں ہی رہے گی، یہی بات ہوئی تھی نا ہماری؟ جی، اس نے کہا اس نے نہیں رہنا، میں اسے چھوڑ آیا۔ واہ واہ کمال، یعنی خود ہی چھوڑا ہے؟ ایسا ہی کرنا تھا تو لے کر ہی کیوں آئے تھے؟ میں نے نہیں کہا تھا کچھ، اس کا دماغ خراب ہے، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ فرحات کو صحیح معنوں میں غصہ تھا۔ چلو جی، یہاں میں اماں کے ساتھ دن رات سن رہے ہو، دن رات دماغ کھپا رہا ہوں، انہیں جانے کس کس طریقے سے ایموشنز بلیک میل کر رہا ہوں کہ وہ سمجھ جائیں، اور وہ سمجھ بھی رہی ہیں، لیکن یہاں تو اور ہی سیاپا شروع ہو چکا ہے۔ فہیم بھائی حقیقتاً چڑھے تھے۔ جاؤ اور اسے لے کر آؤ، یہ مسئلے ساتھ رہ کر حل ہوتے ہیں، نہ کہ دور رہ کر۔ اور وہاں گھر والوں کو کیا بتایا؟ میں نے دانیال بھائی کو فون کر دیا تھا کہ مجھے کچھ کام کے سلسلے میں کراچی جانا ہے، تو فارا ادھر ہی رہے گی۔ شاباش بھائی واہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہوں تمہیں، میں تو یہاں ولیمہ کا دن ڈیسائیڈ کیے بیٹھا تھا اور وہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ فہیم بھائی تپے ہوئے انداز میں بولے۔ وہ خاموش ہی رہا۔ جاؤ اور اسے لے کر آؤ، انہوں نے حکمیہ انداز میں کہا۔ میں نہیں جانے والا، اب اسے آنا ہوگا، خود آئے گی، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ فرحات نے ان کی بات کا جواب نروٹھے انداز میں دیا۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، جب تم دونوں یہ معاملہ سلجھا لو تو ہمیں فون کر کے اطلاع دے دینا۔ اس کے انداز پر فہیم بھائی نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ ان کا تو دماغ ہی خراب ہے، ساتھ ہمیں بھی پاگل بنا رکھا ہے۔ فہیم بھائی کو صحیح معنوں میں اپنی کی گئی محنت پانی میں جاتی نظر آئی تھی۔ آئے گا تو وہی، اسے ہی آنا پڑے گا۔ یہ جواب فارا نے اپنے اندر ابھرتی رات بھر کی سوچوں کو دیا تھا۔ اگلا دن نکل آیا تھا، وہ نیچے جا کر گرل کے پاس پہنچی تھی جب اسے دانیال بھائی اور آنٹی کی باتوں کی آواز آئی۔ فرحات کام کے سلسلے میں کراچی گیا امی، اسے وہاں کچھ دن لگیں گے، اسی لیے فارا یہاں رہے گی۔ ادھر فہیم بھی اپنی فیملی کے کسی فنکشن پر مصروف ہے، اس کے سسرال میں بھی کوئی شادی ہے، ورنہ تو وہ خود آپ سے ملنے کا کہہ رہا تھا اور ساتھ اپنی امی کو بھی لانے کا کہہ رہا تھا۔
दानियाल भाई की आवाज़ बिल्कुल साफ थी और आसानी से फारा तक पहुंच रही थी। हाँ हाँ ज़रूर, मैं तो कह रही थी सुहा की शादी में इनवाइट करना उनको। देखो भला कैसे रिश्ते निकल आए। इतने बरसों से तुम लोग दोस्त हो। फारा हमारे पास रही, लेकिन कैसा इत्तेफाक है कभी आपस में मिलना ना हुआ। बस अम्मा, जब किस्मत में लिखा हो तभी होता है। वो लोग और बातों की तरफ चले गए तो फारा भी ग्रिल खोलती पर्दा पीछे करती अंदर आ गई। वो दोनों से देखकर खुश इखलाक़ी से मुस्कुराए। हाल अहवाल पूछने के बाद वो अंदर सोहा के पास चली गई। शादी में दिन कम थे और तैयारियां भी कुछ भी नहीं थी। सही मानों में उन सबकी दौड़ लगी हुई थी। फिर हुआ ये कि दिन पर लगाकर गुजरने लगे। सोहा की शादी का वक्त करीब आ रहा था। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। आदिल भी शादी में बढ़कर दानियाल भाई का खूब हाथ बटा रहा था और साथ साथ माहौल को भी खुशगवार बनाए रखता। वो कभी कोई ऐसी बेसाख्ता बात कर जाता कि फारा की भी हंसी छूट जाती। देखने को तो सब नॉर्मल था, लेकिन ये तो फारा ही जानती थी नॉर्मल नहीं था। उसके अंदर जो कुछ चल रहा था ये तो वो ही जानती थी। फरहाद एक बार भी ना आया और फारा को जो शुरू में तशवीश हो रही थी वो परेशानी में बदल चुकी थी। फ़ोन भी नहीं था उसके पास। क्या पता फ़ोन पर ही बात हो जाती, चाहे झगड़ा ही सही, लेकिन एक राब्ता तो रहता। फिर जहन में आया फरहाद किसी और के नंबर पर फ़ोन कर लेता तो उसे उसका नंबर याद नहीं था, लेकिन याद होता तो कर लेती क्या। फारा को ये भी था कि कोई उससे फरहाद के मुतल्लिक पूछेगा, लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा। गुजरते दिन में फरहाद की अहमियत मज़ीद वाज़ेह हुई थी। रात सोते आंखें बंद करती तो उसकी शबीह बंद आंखों के पर्दों में आती। आंखें खोलती तो वो ख्याल में साथ साथ रहता। कितना ख़ास हो गया था उसे। वो एक अलग हैसियत पा चुका था। उसकी मोहब्बत और ख्याल रखने का अंदाज़ जैसे अब नज़र आया था। वो नाराज़ हुआ तो जैसे सब बातें पसोपश चली गई थीं। जिन बातों पर फारा को एतराज़ थे वही बातें बगैर अहम लग रही थीं, लेकिन अब कोई सदेबाब होता नज़र नहीं आ रहा था। हमेशा की तरह वो एक सोच उभरती, उसे दबाती, फिर दूसरी सोचती। कभी खुद पर गुस्सा आता और कभी फरहाद पर। जब मैं घर नहीं गई तो इसका मतलब था मुझे नहीं जाना, बजाय कि मेरी बात का जवाब देने के खुद छोड़ने आ गए जनाब। हालांकि ये सब उस वक्त बता सकता था जो मुझे यहाँ आकर पता चला। फारा ने कुड़कर सोचा, लेकिन ये उसने सोच लिया था कि पेशकदमी तो फरहाद ही करेगा। आएगा तो वही। उसे अगर वाकई मोहब्बत हुई थी तो वो ज़रूर आएगा। दूसरी जानिब फरहाद भी जल भुन रहा था, यानी कि फारा अपनी ज़िद पर कायम थी और मुसलसल कायम थी। एक बार भी उसकी जानिब से कोई पेशकदमी नहीं हुई थी। वो नाराज़ हुआ था तो अब फारा को ही उसे मनाना चाहिए था। घर आ जाती, उसने कौन सा कुछ कह देना था। एक बार आ जाए बस, वो भी सब नाराज़गी भूल जाएगा। लेकिन वो आने वाली होती तो आती ना। ज़िद में वो उससे 2 हाथ आगे ही थी। और मज़े की बात तो ये थी कि सूरत हाल में दोनों को शुरू में जितना गुस्सा आया था उस वक्त तो लग रहा था शायद ये रिश्ता बचेगा भी नहीं। लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी उस हवाले से बिल्कुल ना सोचा था। यहाँ तक कि सलीम न्याज़ी भी अपने अंजाम तक पहुँच चुका था। सालों की जलती आग को सुकून मिला था। फरहाद को अब सुकून भरी नींद आनी चाहिए थी, लेकिन फारा की मरहून मिन्नत सुकून भरी नींद तो दूर, सिर्फ नींद भी नहीं आ रही थी। सलीम न्याज़ी से मुतल्लिक़ खबर ने फारा को हैरान किया था। जब से घर में मेहमान आए थे हर वक्त एक हलचल सी मची रहती। हालांकि अभी ये सिर्फ चंद मेहमान थे। फारा भी नीचे ही सोहा के पास सो जाती। मायों की रस्म शादी से 5 दिन पहले घर के अफराद कर चुके थे और ये मायों से 2 दिन बाद की बात थी। आदिल कुछ काम के बाद फ्री हुआ था तो बच्चों से रिमोट लेकर उन्हें भगाया, जो हर वक्त कार्टून ही लगाए रखते थे। फारा भी टीवी लाउंज में बैठी सोहा की रिश्तेदार खाला से बात कर रही थी जब सलीम न्याज़ी के नाम पर चौंकी थी। ये हाल तो है हमारे सियासतदानों का। जाने क्या खबर थी कि आदिल बोला। फारा उठ के करीब आई थी। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सलीम न्याज़ी जो कुछ अर्सा पहले ही एक नुमाया कामयाबी हासिल करके सियासत में अपने कदम जमा रहे थे। कुछ दिन पहले उनके गैर कानूनी धंधों की वीडियो वायरल हो चुकी है, लेकिन अब एक और वीडियो जिसमें वो पुलिस को रिश्वत दे रहे हैं मंजर आम पर आ चुकी है। और इसके अलावा बहुत से मामलात में उनका नाम मुलविस है, जिसमें करप्शन अव्वल नंबर पर है। क्या कहते हैं आप सियासतदानों के ये रुख कब बदलेगा? एंकर कहकर बुलाए गए मेहमान से पूछने लगी। आदिल ने चैनल चेंज कर लिया। वहाँ भी सलीम न्याज़ी की खबरों की जीनत बना था। खस कम जहाँ पाक। उसके जेल जाने की खबर देखकर फारा के मुंह से बेइख्तियार निकला था। वो वापस उठकर खाला के पास चली गई। दरअसल फारा ने सलीम न्याज़ी को अहमियत ही ना दी थी। उसने कभी खास उसके बारे में सोचा भी नहीं। नदीम मलिक के वफ़ात से उसे दुख हुआ। सालों बाद किस्मत उस पर मेहरबान हुई थी कि कोई था
جو اس کے لیے اسٹینڈ لے رہا تھا، اس کے لیے فکر مند تھا، لیکن وقت نے وہ بھی چھین لیا۔ اور پھر فرحاد کا گھر سے نکال دینا۔ اس کے بعد کی زندگی بھی فارا کے لیے آسان نہ تھی، اور انہیں مشکلوں میں اپنے جینے، رہنے اور کھانے کے لیے کمانے کی کوشش میں وہ ان چیزوں میں زیادہ دیر ڈوبی نہ رہی۔ زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل نکل آئے تھے۔ ندیم علی کی موت کا دکھ اس سب میں جیسے پسے پش چلا گیا تھا، لیکن وہ بھولی نہیں تھی۔ جب اسے فرحاد یاد تھا تو وہ کیسے نہ یاد رہتے، لیکن جینے کی تگ و دو نے اسے مصروف کر دیا تھا۔ ہاں، یہ تھا کہ قسمت نے اس کے حق میں بہت اچھے فیصلے بھی کیے۔ اس کی دوست جس کے توسط سے وہ لاہور چھوڑ کر اسلام آباد آئی، وہاں جاب اور رہنے کی جگہ ڈھونڈنا ہرگز آسان نہ تھا۔ سب کچھ مشکل تھا، اور کچھ چیزیں مشکل ترین ملی تھیں، اور کچھ کام آسانی سے ہو گئے، لیکن گزرتے وقت سے وہ سنبھلی ہی تھی، وہ بہکی نہ تھی۔ بہکنے کے بہت آسان اور ہزاروں راستے تھے جن سے اپنے رہن سہن اور اخراجات کی کوئی فکر مندی نہ رہتی۔ کھانا پینا، مکان کا کرایہ، اس چیز کی کوئی پریشانی نہ رہ سکتی۔ وقتی طور پر اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اخراجات اٹھانے کو بہت سے مل جاتے ہیں۔ فارا نے خود ان لڑکیوں کو دیکھا تھا جو محنت سے پیسے کمانے کے بجائے اپنی عزت کا سودا کر بیٹھتیں، یا کسی کی باتوں میں آ کر اپنے راستے سے بہک جاتیں، جس کا نتیجہ سوائے بدنامی اور رسوائی کے کچھ نہ ہوتا۔ فارا کو بھی ایسی بہت سی آفر ہوئی تھیں۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر مرد شہد کی مکھیوں کی طرح اس پر جھپٹتے ہیں۔ ایک عورت کا معاشرے میں اکیلے سروائیو کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر عورت کے اندر پختگی ہو، وہ اپنے عزت نفس پر قابو پانا جانتی ہو، سب سے زیادہ اپنے عزت کو سب سے قیمتی شے سمجھتی ہو، تو وہ عورت مرد کے معاشرے میں بھی سروائیو کر لیتی ہے، کبھی نہیں بہکتی۔ اور آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا، زندگی میں کچھ بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو محنت سے، محنت سے نہ ملے تو دعاؤں سے، اور جو دعاؤں سے بھی نہ ملے تو سمجھ لیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں۔ فارا جانتی تھی، سمجھتی تھی، یہ شارٹ کٹ طریقے جو سکون مہیا کرتے ہیں حرام ہیں۔ اسلام اس کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جس کی کوئی بخشش نہ تھی، لیکن فارا کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی تھا۔ وہ فرحاد کے نکاح میں تھی، اور یہ بات اس کے شعور لاشعور دونوں میں زندہ تھی۔ وہ اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کر سکی، نہ ہی بھول سکی۔ اس کا شوہر تھا، وہ کسی کی بیوی تھی۔ یہ احساس ہمیشہ بہت جاندار انداز میں اس پر حاوی رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فرحاد سے چڑھتی تھی، غصہ کرتی تھی، بیزاری دکھاتی تھی، لیکن دل میں نرم گوشہ بھی موجود تھا، اور اپنی اس دوغلی پالیسی پر اسے خود پر تاؤ آتا تھا۔ وہ خود کو بے بس پاتی تھی۔ فرحاد سے بھرپور نفرت وہ کبھی نہ کر پائی تھی، لاکھ چاہ کر بھی نہ کر پائی تھی۔ اب بھی سلیم نیازی نے خود اس کو متوجہ کیا، ورنہ تو وہ جانتی بھی نہ تھی اسے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ویسی اتنی تھک چکی تھی کہ کسی نئی مشکل سے بچ کر چلنا ہی بہتر لگا۔ ایک عرصے سے خواہش تھی کہ ایک گھر ہو جس میں سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی تو حق ہونا چاہیے تھا۔ ایک گھر جو اس کا ہوتا، کوئی اس کے بھی لاڈ اٹھائے۔ ساری عمر کبھی یہاں کبھی وہاں گزری۔ شادی ہوئی، اس کے بعد بھی زندگی کا وہی چال چلن رہا۔ ایک پرسکون زندگی اور اپنے گھر کی خواہش جو وقت کے ساتھ بڑی ہوئی تھی۔ ایک گھر جہاں سے اسے نکال دے جانے یا کرائے دینے کی پریشانی نہ ہوتی۔ اور اب اس خواہش کے پورا ہونے کا دار و مدار صرف فرحاد پر تھا۔ فارا اب بھی پہل نہ کرنے والی تھی۔ منانا تو فرحاد کو ہی تھا، اور اگر اس بار فرحاد پلٹ آتا تو فارا پوری زندگی کے لیے اس کی غلام بن جاتی۔ وہ خرید لیتا اسے۔ یہ فارا کی عجیب ہی منطق تھی۔ اسے لگتا تھا فرحاد اب بھی اس کی طرف بڑھا تو اس کی محبت میں واقعی سچائی تھی، اور اگر وہ اپنی انا کو آڑے لے کر آ کے اس کے آنے کے انتظار میں تھا تو اس کا انتظار ہی رہنے والا تھا۔ یہ واقعی عجیب منطق تھی۔ سوہا کی مہندی کا دن آ چکا تھا۔ دانیال بھائی سے معلوم ہوا کہ فہیم بھائی بھی فیملی سمیت یہاں سوہا کی شادی اٹینڈ کرنے آنے والے تھے، اور لازمی تھا فرحاد بھی آتا۔ اتنے دن بعد اس کا سامنا ہونے کے خیال سے دل خوشگوار سا ہوا تھا۔ اپنے کپڑے وہ پریس کر چکی تھی۔ آنٹی نے اسے بھابھی جیسا ہی سوٹ بنوا کر دیا تھا۔ وہ کافی ہچکچائی تھی اور منع بھی کیا، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، بلکہ تینوں دن کے کپڑے بنوا کر دیے، اور اس کے اعتراض پر کہنے لگیں، میرے لیے تم بھی سوہا جیسی ہو، اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر میری جانب سے تمہارا دل دکھا ہے تو اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آنٹی؟ فارا ان کی بات پر شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں بیٹا، غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، ہیں تو انسان ہی نا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ سب میں کسی ازالے کے طور پر کر رہی ہوں، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں تمہیں۔ بے فکر ہو کر اپنی بہن کی شادی انجوائے کرنا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولیں تو فارا نم آنکھوں سے مسکرا دیں۔ آنکھیں تو ان کی بھی نم تھیں۔ پھر فارا نے ان کے کہنے پر بنا کچھ کہے چپ چاپ وہ کپڑے رکھ لیے، نہا کر کپڑے بدلے۔ مہندی کا فنکشن ہال میں تھا۔ فارا کا دل کہ آج خوب سجے، خوبصورت دکھے۔ اپنی زندگی میں وہ کبھی اتنے سج دھج سے تیار نہ ہوئی تھی، لیکن آج دل چاہ رہا تھا خوب تیار ہو کر فرحاد کے سامنے جائے اور اس کے تاثرات دیکھے۔ لائٹ گولڈن اور خوبصورت گرین کلر کے امتزاج سے تیار کیا گیا فراک دیدہ زیب تھا، ساتھ کھلا پاجامہ تھا۔
गोल्डन कलर का दुपट्टा जिस पर ग्रीन और गोल्डन लेस ने उसकी सजावट को निखारा था। फारा ने कभी इतना हैवी सूट न पहना था, इसलिए हिचकिचा भी रही थी, लेकिन जब पहन कर आई तो अपना आप ही शीशे में इतना अच्छा लगा कि उसे इतने अच्छे की उम्मीद ना थी। नीचे ब्यूटिशियन आई थी, वो भी नीचे तैयार होने गई थी। जब नीचे पहुंची तो आंटी और भाभी ने उसे सराहने वाली निगाह से देखा। आंटी ने उसे गले से लगाकर दुआ भी दी। फारा को सब अच्छा लगने लगा। जाने क्यों अब लगा था कि कुछ अच्छा होने वाला था, बहुत अच्छा। सब तकलीफ़ें ख़त्म होने का वक्त आ गया था शायद। वो अपनी बदलती कैफियत पर खुश थी। ब्यूटिशियन को तैयार करने की हिदायत दे रही थी कि इसी पल एक बच्चा आया और उसे दानियाल भाई का पैगाम देकर गया। वो उसे बुला रहे थे। फारा उनकी बात सुनने गई। ये फ़ोन है तुम्हारा, बात कर लो, उसे आता देखकर कहा और फ़ोन थमा दिया। किसका फ़ोन था ये भी ना बताया और बाहर निकल गए। शायद जल्दी में थे। हेलो, फारा बोली। हेलो, कैसी हो फारा? आप कौन? फारा आवाज़ ना पहचान पर उसे लगा फरहाद होगा, लेकिन वो नहीं था। फ़हीम बात कर रहा हूँ। फ़हीम भाई आप? फरहत बेगम आज सुबह ही बेटे और बहू के साथ इस्लामाबाद पहुंची थी। फरहाद को उन लोगों ने सरप्राइज़ दिया था। जब फ़हीम भाई ने अम्मा से जिक्र किया कि फरहाद को उनके आने का इल्म नहीं, उसे सरप्राइज़ देंगे, तो अम्मा को अपना दिए जाने वाला सरप्राइज़ याद आ गया। जब फारा से उनका सामना हुआ था, अभी उन्हें कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। फरहाद लॉन में बैठा अखबार पढ़ रहा था जब वो लोग पहुँचे और उन्हें देखकर हैरान हुआ, लेकिन इतना नहीं। उसे मालूम था कि भाई अपने दोस्त दानियाल की बहन की शादी तो अटेंड करने आएंगे। फजल ने चाय का इंतज़ाम किया, साथ कुछ हल्का फुल्का खाने में साथ रखा। खाना उन सब ने मना कर दिया था। अम्मा भी सफ़र से थक चुकी थी, सो चाय पीने के बाद लेट गईं। भाभी भी बच्चों को कमरे में ले गईं। रात मेहंदी का फंक्शन भी अटेंड करना था, सो कुछ रेस्ट हो जाता। बाहर सिर्फ फरहाद और फ़हीम भाई रह गए। हाँ तो क्या बना? फ़हीम भाई ने उसे जांचती नज़रों से देखा। कुछ नहीं। उनकी बात का पस मंज़र समझकर वो बोला, तुम लेने नहीं गए उसे? जवाब तो वो जानते थे, फिर भी पूछा। नहीं। क्यों? वो इसका जवाब भी जानते थे, लेकिन फरहाद कुछ ना बोला, खामोश रहा। तो वो खुद बोल पड़े, पागल, अगर लेने जाते ना तो वो आ जाती, अगर ना आती तो? फरहाद ने अपना खदशा बयान किया। आ जाना था उसे, शर्ट लगा लो, बिना कुछ कहे वो आती। फ़हीम भाई ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा, जैसे ये बात तो सामने की थी, वो आ जाती। आपको तो ना जाने कौन कौन सा तजर्बा है। उनके अंदाज पर फरहाद चिढ़कर बोला था। हा, क्या करें यार, शादी के इतने साल बाद तजर्बा ही तो मिलता है। उसकी बात पर वो कहका लगा कर बोले, लेकिन मैं नहीं लाऊंगा उसे, और ना ही आने का कहूँगा। वो भी अपनी ज़िद पर अड़ा था। सोच लो, शक्ल देखिए अपनी, मजनू बने हुए हो पूरे। वैसे अगर इतने ही कॉल के पक्के हो तो शादी पर मत जाना। फ़हीम भाई आंखें घुमाते हुए बोले। क्यों? फरहाद ने हैरत से उन्हें देखा। शायद फिर तुम अपनी इस ना वाली बात पर कायम ना रह सको, ये भी तजर्बा है मेरा। बीवियों के पास शौहरों को शिकस्त देने के हज़ारों तरीके होते हैं फरहाद मियाँ, और अच्छे शौहर उस शिकस्त को खुले दिल से कबूल करते हैं। अच्छा, अब ज़रा मैं भी रेस्ट कर लूँ। वो जो मानी अंदाज में बात ख़त्म करते वहाँ से चले गए। पीछे फरहाद उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करता रह गया। सब तैयार हो रहे थे। जो तैयार होता जाता वो हॉल की तरफ रवाना कर दिया जाता। वक्त तो पड़ लगाकर उड़ने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान जा चुके थे। सोहा ने फारा को रोक लिया था। आदिल के ज़िम्मे उनको लेकर जाना था। आदिल भी आज अलग हवाओं में था। उसकी मंगेतर जो यहाँ मौजूद थी, जिसे सोहा से मिन्नत करके उसने यहाँ रुकवाया था। घर को लॉक लगाकर वो सब भी गाड़ी में बैठे थे। फारा पर अलग ही कैफियत बीत रही थी। फ़हीम भाई और उनकी फैमिली से काफ़ी अर्से बाद सामना हुआ था, और ताई अम्मा भी तो मौजूद होंगी। उनका जाने क्या रद्द-ए-अमल होगा। और फरहाद, उस पर आकर तो दिल की धड़कन मद्धम हो रही थी। अपनी भरपूर तैयारी जिस पर सबने उसे खूब सराहा था, ख़ुसूसन फरहाद के लिए ही तो थी। उन्हीं सोचों में हॉल तक का रास्ता तय पाया। फारा का दिल धक धक करने लगा। आदिल की मंगेतर नूर सोहा को संभालने बाहर निकली। फारा दूसरे दरवाजे से बाहर आई और अपना दुपट्टा सही करने लगी। आदिल भी गाड़ी का लॉक लगाकर अंदर की जानिब पड़ने लगा। उसके पीछे नूर और सोहा थी। फारा उनसे कुछ फासले पर पीछे थी। बाजी अल्लाह के नाम पर दे दो। उसके पीछे बच्चे ने फरियाद की तो उसके कदम थमे। वो मुड़ी तो एक छोटा बच्चा हाथ में कुछ पेन पकड़े उसको देख रहा था। फारा के पास तो इस वक्त पैसे मौजूद ना थे। आजकल वो मोबाइल और पैसों के झंझट से आज़ाद थी। बच्चे को वापस मोड़ना भी अच्छा ना लगा। उसने पलटकर नज़रें घुमाई, शायद कोई जानने वाला मिल जाए, और मिला ना जानने वाला, फरहाद मलिक।
जो दाखिली दरवाजे पर साकत खड़ा उसे ही देख रहा था, शायद पहचान रहा था। फरहाद जो गाड़ी में से फ़हीम भाई के बेटे का फीडर लेने आया था, भूलकर वहाँ खड़ी फारा को देखकर साकित हो चुका था। फारा के करीब आने पर जागा था। कुछ पैसे दें, उसके लहजे में इस्तहाक था। क्या? फरहाद समझा नहीं। उसकी होशरुबा तैयारी पर वो पहले ही शुश्तर था, ऊपर से उसका अंदाज, वो चारों टाने शत हुआ था। उसे फ़हीम भाई की बात भी याद आई। पैसे दें, बच्चे को देने हैं। फरहाद को बात तो अब भी समझ न आई, लेकिन जेब की जानिब हाथ गया और पर्स निकाला। अंदाज में कान की था। वो उलझन में लग रहा था, और ये उलझन बहुत खूबसूरत थी। फारा उसकी हालत देख रही थी और दिल ही दिल में महसूस हुई। उसने उसके हाथ से पर्स पकड़ा और उसमें से पैसे निकाले और वापस फरहाद के हाथ में दिया। फरहाद तो उसे देखता ही रह गया। उसकी भरपूर तैयारी जिसमें वो हसीन तर लग रही थी। फरहाद को लगा था वो तो रोती धोती हमेशा की तरह सड़े हुए अंदाज में नजर आएगी। ये तैयारी तो वहमो गुमान में भी ना थी। फारा बच्चे के पास गई, उसे मुस्कुरा के पैसे पकड़ाए। बच्चा अपनी सोच से ज़्यादा रकम पाकर खुश हुआ था। उसके जाने के बाद फारा पलटी तो फरहाद दाखिली दरवाजे की सीढ़ी उतर चुका था। साइड पर खड़ा उसे ही देख रहा था। फारा खामोशी से उसके पास से गुजर कर जाने लगी। फरहाद ने भी उसे नहीं बुलाया, लेकिन वो पलटी थी। एक स्टेप उतर कर उसके सामने आई। यूं के कद फरहाद से ऊंचा ही रहा, क्योंकि फरहाद सबसे नीचे वाले स्टेप पर था और वो दूसरे पर खड़ी थी। सोच से कुछ ज़्यादा लंबी थी। वैसे ये पैसे उधार तो नहीं है ना? सुना है शौहर की कमाई पर बीवी का हक होता है। वो उसके कान के करीब झुककर बोली थी। एक हाथ उसके कंधे पर रखा था। क्या अंदाज था! आज फारा इकराम फरहाद मलिक को बिल्कुल छोड़ने के मूड में न लग रही थी। वो उसे आज हैरानगी से मारने वाली थी। फरहाद ने अपने करीब तरीन चेहरा किए फारा पर नज़र डाली। लाल सुर्ख होंठ उसके देखने पर दिल नशीन अंदाज में फैले थे। फिर नज़रें झुकाती खुशबू बिखेरती वो जाने को मुड़ी थी। उफ! फरहाद का दिल कुड़लाया था। अब कैसे कायम रह सकोगे फरहाद मलिक अपने अल्फाज पर? उसका दिल हंसा था। फरहाद ने टिश्यू निकालकर माथे पर आने वाला पसीना साफ किया था और कुर्ते का ऊपरी बटन खोला। फारा अंदर गई तो निगाह दौड़ाई और उसे एक टेबल पर तायम्मा फ़हीम भाई अपनी फैमिली समेत नजर आए। वह एतमाद से उनकी जानिब बढ़ी, लेकिन अंदर से दिल धक धक कर रहा था। उसे यह एतमाद फ़हीम भाई के फ़ोन ने भी दिया था। आज जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बिना कुछ छुपाए उसे बिला झिझक साफ बात की थी। देखो भाई, वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है तो तुम्हें भी थोड़ा सब्र करना होगा। जानता हूँ जो तुम बखूबी करोगी, और ये सिर्फ तुम्हें अम्मा के मामले में कह रहा हूँ। बस उनको कुछ वक्त लगेगा, बाकी तुम दोनों आपस के मामला जैसे मर्जी सुलझाओ, लेकिन नतीजा अच्छा आना चाहिए। समझ रही हो ना मेरी बात? और फारा उनकी बात समझ चुकी थी। फरहाद के लिए ये तो कर ही सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने करीब जाकर सलाम किया तो वो सब उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई खासे जोश में उठे थे और उसके सर पर हाथ रखकर उसे साथ लगाया। भाभी भी मुस्कुरा कर उठी और उसे गले लगाया। उनसे मिलने के बाद वो तायम्मा से प्यार लेने को झुकी तो उन्होंने सर पर प्यार दे दिया। अंदाज में हल्की सी सर्द महरी थी, लेकिन इतनी भी नहीं। ये भी गनीमत था कि उसे प्यार ही दे दिया। फ़हीम भाई ने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी। भाभी ये लें। उसी लम्हे फरहाद आया और टेबल पर फीडर वाला बैग रखता बोला, फरहाद तुम फारा से मिले? फ़हीम भाई को शरारत सूझी। फरहाद उनके सवाल पर खामोशी रहा, लेकिन फारा पर निगाह ज़रूर डाली, जो बाहर तो बड़ी पुरएतमादी दिखा रही थी, इस पर नज़रें झुका गई थी। यानी कि नहीं मिले, बहुत बुरी बात है। उसकी खामोशी पर फ़हीम भाई खुद ही शरारती अंदाज में बोलने लगे। मैं जाती हूँ सोहा के पास। फारा को यहाँ से बचकर निकलना मुनासिब लगा। जाओ फरहाद, काफ़ी रश है, फारा को छोड़ कर आओ। फ़हीम भाई को जो रश दिखाई दिया था उनमें किसी को ना दिखाई था, और छोड़कर आने का ऐसे कह रहे थे जैसे कहीं बहुत दूर जाना हो। जी भाई, जो आपका हुक्म। चलें। उस जवाब की फारा को तो बिल्कुल उम्मीद ना थी। फारा के अलावा अम्मा को भी उम्मीद ना थी, लेकिन वो देख रही थी कि बच्चे खुशगवार मूड में थे, खुश थे, और हंसते बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते। सो खामोश रहीं। कुछ अच्छा नहीं कह रही थी तो बुरा कहने से भी गुरेज किया, और ये बहुत बड़ी बात थी। फ़हीम भाई की मेहनत वाकई रंग लाई थी। फरहाद जो उठ खड़ा हुआ था फारा की जानिब देख रहा था। फारा फ़हीम भाई की साइड से रास्ता बनाने बाहर निकली थी। वो भी उसी जानिब से जाने लगा जहाँ फारा जा रही थी। अम्मा, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, किसी की नज़र ना लगे। फ़हीम भाई ने अम्मा को मुतवज्जे किया तो वो भी नज़र उठाकर देखने लगीं, फिर नज़र हटा ली। उनके अंदाज़ पर उन्होंने अपनी हंसी रोकी और प्यार से अम्मा को कंधे से लगा लिया। शुक्रिया अपने भाई की फरमाबरदारी के लिए। फारा ने जानबूझकर तंजिया अंदाज अपनाया।
वो कहकर पलट रही थी, लेकिन फरहाद ने उसे बाजू से पकड़ कर रोका और उसे खींचता हुआ ले जाने लगा। इतना तैयार किस खुशी में हुई हो? और उसकी पश्त दीवार से लगाता हुआ बोला। फारा को उसके तासुरात मज़ा दे गए। किस खुशी में तैयार हुई हूँ ये तो नहीं पता, लेकिन एक ख़ास इंसान के लिए तैयार हुई हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। फारा उसकी आंखों में देखकर बोली थी। वो ख़ास इंसान नाराज़ है, दूर दूर से नहीं मानता। फरहाद ने एक हाथ दीवार पर जमा कर कहा। फरहाद की बात पर उसकी हंसी छूटी थी। तो ले जाता आकर, किसने रोका था? मैं उसे पास से मना लेती अब तक तो। फारा कंधे अचका कर बोली। फरहाद को उसके अंदाज हैरान पर हैरान कर रहे थे। वो क्यों आए? उसने कहा था आपकी बार वो कुछ नहीं करेगा। फरहाद ने खफगी से उसे देखा। खैर, आना तो उसे ही पड़ेगा, मैं तो नहीं कहूँगी एक बार भी। फारा ने आगे घुमाते हुए कहा। यह खुशफहमी है तुम्हारी कि आपकी बार वो आएगा, आपकी बार तुम पहल करोगी। देख लेते हैं फिर पहल कौन करेगा। फारा ने उसकी गर्दन पर बाजू डाले और उसके करीब होकर दिलकशी से बोली थी। उसी पल तालियों के शोर की आवाज़ें और लाइट्स बंद हो गईं। गाने की टोन भी बदली थी। शायद सुहा स्टेज पर जा रही थी। फारा को उस सूरत हाल का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फरहाद मौके का फ़ायदा उठाकर उसके गिरफ्त मजबूत कर चुका था। फारा की सारी खुद एतमादी भग से उड़ी थी। आने वाले वक्त में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो वक्त मुयस्सर है इसे क्यों ना जाने दिया जाए। वो कहते हुए शौक से गुस्ताखी कर चुका था। फारा का दिल बेहंगम से सरपट दौड़ने लगा। फरहाद प्लीज़, वो मिनमिनाई थी। नहीं जाने मन, ऐसे मौके को गवा देने वाले बेवकूफ़ होते हैं, और मैं ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करने वाला। फरहाद उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल ना था। उफ, तुम कितने। उसी पल फरहाद का फ़ोन बजा था। तलसम टूटा तो ना था, लेकिन उसमें खलल पड़ चुका था। मुसलसल बजते फ़ोन की जानिब से मुतवज्जा होना ही पड़ा, कोई और उनकी जानिब मुतवज्जे ना हो जाए। और फारा ने सुकून का सांस लिया। इसी पल रोशनियां दोबारा फैली थीं और फारा के लिए शुक्र का मकाम था। फरहाद फ़ोन बंद करके उसे देखने लगा। वो जो बचकर निकलने के चक्कर में थी, लेकिन उसके हाथ रखकर रोकने पर जा ना पाई। फंक्शन के बाद गाड़ी में आकर बैठ जाना, अगर जाना है तो। फरहाद ने उंगली उसके लाल रंगे होंठों पर फेरी थी। उसके बाद पर फारा ने तीखे अंदाज में उसे देखा। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मर्जी है, आज का ही चांस है बस। फरहाद ने भी लापरवाह अंदाज अपनाया था, जबकि दिल तो अंदर से चाह रहा था कि अभी हाथ पकड़ कर ले जाए। मुझे ऐसे चांस चाहिए भी नहीं। फारा कहते हुए उसके बाजू के नीचे से तेज़ी से निकली और स्टेज की जानिब बढ़ने लगी। फंक्शन के ख़त्म होने पर वो लोग गाड़ियों की जानिब गए। अम्मा तो कब से जाने की ज़िद कर रही थी। फरहाद ही कान नहीं धर रहा था। फ़हीम भाई अपने दोस्त के साथ एंजॉय कर रहे थे। बच्चे नींद पूरी करके फ्रेश आए थे, खेल रहे थे। भाभी भी कभी यहाँ कभी वहाँ बातों में मसरूफ़ होती, और अम्मा उकता चुकी थी। दानियाल भाई की अम्मी ने उन्हें कंपनी भी दी थी, जिस पर उन्होंने फारा की बहुत तारीफ़ की थी, जो फरहत बेगम ने खामोशी से सुनी थी। जाहिर है जब उनके निकाह की खबर फैल ही चुकी थी तो वो चुप रहने के अलावा और क्या करती। अब वो जाने का कह रही थी, लेकिन फरहाद ने जो फारा को कहा था उसे मुकरना नहीं चाहता था। वो इंतज़ार करना चाहता था और देखना चाहता था वो आती है या नहीं, और वो नहीं आई। उसके सामने वो आदिल के साथ गाड़ी में बैठ कर गई थी। फरहाद का मूड ऑफ हुआ था, यानी कि इतनी इतराहट। अब ऐसा भी क्या, कह तो दिया था कि साथ चलो, अब और क्या कहता। वापसी पर सबने फरहाद के मूड की खराबी को नोट किया। हिम्मत रखना, आज की रात बहुत भारी गुजरने वाली है। फ़हीम भाई हंसी दबाए उसको तसल्ली देने वाले अंदाज में बोले और खंदा थपथपाते हुए चले गए। फरहाद ने गुस्से से ज़ोरदार आवाज़ से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था। ठीक है फारा, अगर तुम जिद में पक्की हो तो मैं भी अब हार नहीं मानूंगा। आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। झुंझुलाते सोचते हुए उसने कुर्ते के बटन खोले थे, कपड़े बदलकर बिस्तर पर लाया। आंखें बंद करते ही फारा का सजा सवरा रूप झिलमिलाया था। उसने तकिया चेहरे पर रखा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। नींद कहाँ आने वाली थी, वो तो सब सूट वाली चुड़ैल जैसे अपने कब्जे में कर चुकी थी। अगले दिन बारात का वक्त दिन का था। भाभी के मायके में भी उसी दिन फंक्शन था। भाई की फैमिली और अम्मा को लेकर सुहा की बारात के बाद उधर जाना था। वहाँ उन्हें रात रुकना था, सो उन्होंने अपना सामान उस हिसाब से रखा। रात भर की बेआराम नींद ने फरहाद पर अपना असर दिखाया। उसे हल्का सा बुखार और सरदर्द महसूस हो रहा था। फ़हीम भाई उसे देखकर जोमानी अंदाज में नजरें घुमाते और कोई ना कोई बात लगा रहे थे। रात काफ़ी भारी गुजरी है शायद। फरहाद खामोश ही रहा। अम्मा को परेशानी हुई तो पूछने लगी, क्या हुआ फरहाद, तबीयत ज़्यादा ख़राब है? नहीं अम्मा जान, बस सुस्ती सी महसूस हो रही है। उसने उनको तसल्ली दी। सुस्ती या किसी की याद आ रही थी? फ़हीम भाई उसकी जानिब झुक कर बोले। फरहाद भाई के शौक अंदाज को नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन अब चुप न रह सका।
मुझे किसी की याद नहीं आ रही थी। अंदाज खफा था। फ़हीम भाई का कहका निकल गया। अम्मा दोनों की शक्ल देखने लगीं। अम्मा जान, अब बस कितना सब्र करवाएंगी? लोगों के बच्चों की शादियां अटेंड कर रहे हैं, अपने बच्चे का भी सोच लें। फ़हीम भाई ने अम्मा को कहा। फरहाद जो वहाँ से उठने लगा था उनकी बात पर बैठा रहा। बिल्कुल, अब आप दोनों डिसाइड कर लें वलीमे का दिन। फरहाद बिना किसी झिझक के बोला था। अम्मा और फ़हीम भाई दोनों उसे देखते रह गए। देखा, सही कहा ना मैंने, बस हो गई है लड़के की। लेकिन अम्मा ने फिर कुछ एतराज़ करना चाहा। लेकिन क्या, निकाह किया है तो क्या सारी उम्र उसे अपने नाम पर बिठाए रखूं? इतने साल हो चुके हैं, अब तो सबको मालूम है वो मेरी बीवी है। ज़्यादा लेट क्या करना आप? फ़हीम भाई तो कुछ ना बोले। अम्मा भी खामोशी से बेटे को संजीदगी से बोलती सुनती रहीं। बेटे के लहजे में तहक्कुम था। उसकी ज़िंदगी थी, वो कब तक अपनी चलाती भी तो कब तक उनकी मानता। और उस मकाम पर आकर उन्हें अपनी चलाना ज़्यादा मुनासिब न लग रहा था। बेटे का अंदाज़ वो कल से नोट कर रही थी। फारा के जानिब उठती उसकी निगाहों में एक मोहब्बत भरी तपिश थी। वो उसकी चाहत बन चुकी थी, जो साफ और वाज़ेह था, और उस वाज़ेह चीज़ को वो कब तक झुठला सकती थी। फरहाद अपना फ़ैसला उन्हें पहले ही सुना चुका था। अगर उनके घर में उसकी बीवी के लिए जगह ना थी तो वो भी नहीं रहने वाला था। अब फारा से इतनी नफरत तो ना थी कि शौहर के बाद बेटी की नाराज़गी भी मोल लेती। वो पहली एक पछतावे के साथ जी रही थी। अब तो उम्र भी इजाज़त ना देती थी। जाने ज़िंदगी कितनी बची थी तो बचाए कि बेटे को दुखी करके खुद भी दुखी होती। बेटे की खुशी पूरी करना ही ठीक लगा। चाहे दिल से खुश नहीं थी, लेकिन बेटे की खुशी में खुश तो हो सकती थी। फरहाद उनको खामोश देखकर उठ चुका था। फ़हीम भाई भी अम्मा को सोचों में गर्द देखकर बिना कुछ कहे उठ गए। अच्छा था अम्मा अब इस बारे में संजीदगी से सोचती। बारात आ चुकी थी। फारा अब तक नजर न आई थी। फरहाद की निगाहें उसी ही तलाश कर रही थी। हालांकि वो उससे मजीद नाराज़ हो चुका था। कल उसका ना आना उसके गुस्से को बढ़ा गया था। हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़े वो बेजार हुआ था। कल की निस्बत आज हॉल भरा पड़ा था। अब बार बार नजरें घुमाना भी अच्छा ना लगा। क्या पता किसको उसकी हरकत नागवार गुजर जाए। अम्मा लोग टेबल पर बैठे थे। खाना खुल चुका था। वो उनसे कुछ फासले पर खड़ा था, ऐसे कि पूरे हॉल पर नज़र पड़ रही थी। लगता है कुछ ढूंढ रहे हो। वो खाली गिलास टेबल पर रखकर पलट रहा था जब उसकी आवाज़ आई। फरहाद ने अपने तासुरात शऊरी तौर पर सर्द किए थे। अब उसे भी तो पता चले कि वो नाराज़ है। हाँ, दूसरी बीवी। उसने ताल्लुक अंदाज अपनाया। वो आज भी तैयार थी। ओपन कामदार शर्ट के साथ तंग पजामा और हल्के फुल्के काम वाला दुपट्टा, जिसे पीछे से लाकर दोनों बाजुओं में डाला हुआ था। बाल बंधे हुए थे, जिस वजह से कानों में डाले बड़े से झुमके मजीद नुमायां हो रहे थे। न चाहते हुए भी फरहाद उस पर भरपूर नज़र डालने पर मजबूर हुआ था। काश मैं भी ढूंढ सकती कोई। लेकिन इस्लाम में मर्द को तो इजाज़त है 4 बीवियों की, लेकिन औरत को तो एक ही पर सब्र शुक्र करना पड़ता है, चाहे जैसा भी हो। फारा के अफसोस भरे लहजे में कही बात पर फरहाद ने उसे घूरा। सब्र शुक्र, चाहे जैसा भी हो, वो उसके अल्फाज दोहराता हुआ बोला था। फारा, बात सुनना ज़रा। जी भाभी। इससे पहले कि फारा उसे कोई जवाब देती, दानियाल भाई की बेगम ने उसे आवाज़ दे ली। फरहाद उसकी पश्त को घूर कर रह गया। इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। फरहाद ने जलकर सोचा था। रुखसती का वक्त आ गया था। माहौल अफसरदा हो गया। सबकी आंखें नम हुई। फारा की आंखों में भी आंसू आए, जिन्हें वो साफ करती जा रही थी, लेकिन फिर भी बह रहे थे। दिल एकदम उदास हो गया। रुखसती के बाद वो सब हॉल से रवाना होने लगे। फ़हीम भाई भी निकलने लगे थे। फरहाद ने फारा को देखना चाहा तो कहीं नज़र ना आई। लब भींचकर वो भी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गया। घर वापस गया तो खामोशी काटने को दौड़ने लगी, जबकि पहले भी अकेला ही था। जाने क्यों आज ज़्यादा महसूस हो रहा था। शायद अम्मा और बच्चों से रौनक हो गई थी, उसने सोचा, और वक्त गुजारने के लिए टीवी ऑन करके बैठ गया। हकीकत में वो अपना ध्यान फारा की जानिब जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर ध्यान उसकी जानिब जाता तो ना रुकने वाली सोचें शुरू हो जाती, और उनसे वो बच रहा था। थक कर वो कमरे में आया और सिगरेट सुलगाकर टेरिस में चला गया। 2-4 सिगरेट पिए, लेकिन सुकून नहीं आया। तंग आकर उसने आधा जलता सिगरेट बुझा दिया। अगर लेने जाते तो वो आ जाती। फरहाद के कानों में फ़हीम भाई की आवाज़ गूंजी, और इसी पल उसके दिमाग में क्लिक हुआ था। फारा का अंदाज भी तो बिल्कुल नाराज़गी भरा ना था। आज और कल के गुजरे वाक़े ने उसकी नज़रों में घूमे थे। तो आकर ले जाता, किसने रोका था? मैं उसे पास से मना लेती अब तक तो। फारा जैसे फिर से उसके करीब होकर बोली थी। फरहाद जैसे अब समझा था, और समझते ही जल्दी से कमरे में आया। घड़ी पर वक्त देखा, 10 बज रहे थे। उसने उजलत में गाड़ी की चाबी पकड़ी और नीचे गया। गाड़ी स्टार्ट की, गेट खुला, गाड़ी तेज़ी से बाहर निकली थी। अस्सलामुअलैकुम।
15 मिनट की तेज़ ड्राइविंग के बाद वो दानियाल भाई के दरवाजे पर खोलने पर बोला था, वालेकुम सलाम फरहाद, आओ अंदर आ जाओ। वो खुश इखलाकी से मिलते हुए बोले, दानियाल भाई मैं फारा को लेने आया था। ओह अच्छा, बैठो तो सही, मैं भेजता हूँ उसे। वो उसे बैठक में ले गए। कुछ देर बाद आंटी भी आ गईं। बेटा वो सामान वगैरह रख रही है, आती है। उसे मिलने के बाद वो बोली। वो लोग शादी से मुतल्लिक बातें करने लगे। आधे घंटे बाद फारा बैग पकड़े अंदर आई थी। कुछ देर बाद फरहाद ने इजाज़त ली और वो उन दोनों से मिलते बाहर आ गए। गेट के पास 2-3 बैग और शॉपर पड़े थे। फरहाद ने खामोशी से सामान गाड़ी में रखा। इस दौरान फारा ने उन्हें फिर अलविदा कहा और गाड़ी में बैठ गई। कल वलीमे पर ज़रूर आना बेटा। वो दानियाल भाई से मिलकर आंटी की जानिब गया तो उन्होंने कहा, जी ज़रूर। फरहाद ने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी में बैठ गया। घर तक का सफ़र खामोशी से गुजरा। घर पहुंचकर बिना गाड़ी से सामान निकाले और कोई बात किए बगैर वो अपने कमरे में चला गया। जनाब नाराज़गी दिखा रहे हैं, फारा ने उसकी खामोशी पर सोचा। और जब ऊपर कमरे में गई तो वो आंखों पर बाजू रखे बेड पर लेटा था। वो भी जाकर बेड पर लेट गई। शादी में थकावट भी बहुत हुई थी। 2 दिन तो ठीक से सो भी ना पाई थी। वो फरहाद की तरफ करवट लिए लेटी थी। फरहाद के अंदाज बहुत कुछ वाज़ेह कर रहे थे, लेकिन फरहाद चाहता था कि वो उससे अपने जज्बात का खुलकर इजहार करे। फरहाद, कुछ देर बाद वो धीमे से बोली तो फरहाद के कान खड़े हुए थे। फरहाद ने हल्के से कहा, शायद वो इजहार करने वाली थी। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या? उसके बाद में फरहाद ने बाजू हटाकर उसे देखा। हाँ, आज सुबह की बस 2 चम्मच खाए चावल कि फिर सोहा के साथ पार्लर जाना था, वहाँ इतना टाइम लगा, वहाँ से फिर खुद तैयार होना था। बहुत भूख लग रही है। तो जब खाना खुला तब कहाँ थी? फरहाद दांत पीस कर बोला, सोहा के पास, उसका सोलो फ़ोटोशूट हो रहा था। फारा उठ बैठी। उसकी बात पर फरहाद लब भींच कर उठा था और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। फारा भी जल्दी से उसके पीछे गई थी। फरहाद ने किचन में जाकर फ्रिज खोला, लेकिन वहाँ भी कुछ खास ना था। होता भी कैसे? उसने खुद ही फजल के पूछने पर कुछ पकाने से मना किया था कि उन्हें तो शादी में जाना था। उसने फ्रिज में पड़ी डब्बा रोटी निकाली, जैम मायो निकाल कर उसके सामने रख दिए। फारा का मुंह बन गया। इतना शदीद भूख में ये रूखा सूखा खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। साथ फरहाद ने दूध का कप रखा तो फारा का मुंह मजीद बिगड़ा। मुझे भूख लगी है, ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है, फारा ने बिगड़े अंदाज में कहा। इस वक्त यही मिल सकता है। फरहाद को भी गुस्सा आया। वो नाराज़ था, लेकिन मैडम बजाय उसको मनाने के नखरे दिखा रही थी। उसकी बात पर कुछ बोले बगैर वो खुद फ्रिज खोलकर देखने लगी। एक छोटे से बाउल में से कुछ नज़र आया। शायद कुछ बचा हुआ सालन हो। फारा ने निकाल कर देखा तो वाकई आलू फलियों का सालन था। ये भी गनीमत था। अब बस आटा मिल जाता रोटी बनाने के लिए, और वो मिलने पर फारा ने हकीकतन शुक्र का सांस भरा था। वो बर्नर ऑन करके अपने लिए रोटी बनाने लगी। चंद मिनट में सालन ओवन में गर्म हो चुका था और रोटी भी बन चुकी थी। फरहाद कुर्सी पर बैठा उसको बस देख रहा था। जब तुम आए मैं अपने लिए खाना गर्म कर रही थी, फिर सब कुछ वैसा ही छोड़कर बैग तैयार करने भागी, वो टेबल पर खाना रखते हुए बोली। फरहाद बिना कोई जवाब दिए उठकर चला गया था। उसके खामोशी से उठकर जाने पर फारा का पहला निवाला तोड़ता हाथ थमा था। हाँ, नाराज़ शौहर के किरदार पर बिल्कुल पूरा उतर रहे हो तुम फरहाद मलिक। फारा ने गहरा सांस भरकर पहला निवाला मुंह में डाला। भूख के मारे जान निकली जा रही थी। खाना खाने के बाद बर्तन धोकर स्टैंड में रखे और हाथ साफ करती बाहर आई। पेट भरती अब गनूदगी छा रही थी। वो जमाई लेती हुई कमरे में आई तो फरहाद लैपटॉप ऑन के बाहों लटकाए बेड पर बैठा था। फारा का दिल इस वक्त लंबी तान कर सोने का था। दिल यही कह रहा था चुपचाप से करवट लेकर सो जाए, लेकिन फरहाद का मूड मजीद ख़राब होता। नाचार वो बेड पर बैठ गई। एक ज़ोरदार जमाई फिर आई थी जो उसने हाथ रखकर रोकी। गर्दन मोड़कर फरहाद को देखा तो वो लैपटॉप बंद कर रहा था। लैपटॉप रखने के बाद वो लाइट बंद करता लेट गया। कमरे में अंधेरा हो गया। फारा ने भी तकिए पर सर रखा और लेट गई। आंखें नींद से बोझल हो रही थी और कुछ देर बाद वो गहरी नींद में थी। फरहाद को उसकी सांस के ज़ेरो बम से अंदाज़ा हुआ कि वो सो चुकी थी। उसने उसके करीब होकर अपने अंदाजे की यकीन दहानी करनी चाहिए तो वो वाकई सो रही थी। फरहाद को बहुत गुस्सा आया। मोहतरमा तो ऐसे सो रही थी जैसे सदियों से भूखी और नींद से बेजार हो। फरहाद ने खुद को पुरसकून करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें ज़्यादा देर कामयाब न रह सका और झंझोड़ कर फारा को उठाया। क्या हुआ? वो नींद से जागने पर हड़बड़ाई थी। तुम यहाँ सोने आई हो? क्या मतलब? अचानक नींद से जागने पर हवास अभी तक गुम थे। मतलब ये कि अगर सोना है तो दूसरे कमरे में जाकर सो। फरहाद के लहजे में गुस्सा था जो उसने दबाने की बिल्कुल कोशिश ना की थी। आज अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ और तुम मुझे कमरे से निकाल रहे हो। फारा को उसकी कही बात समझ आते ही आग लगी थी।
میں نے کہا ہے کہ اگر ایسے ہی کرنا ہے تو لے کر کیوں آئے ہو؟ فارا نے اسے بات بھی پوری کرنے نہ دی۔ اور اگر تم نے ایسا کرنا تھا تو آئے ہی کیوں؟ فرحاد بھی دو بدو بولا۔ کیا کر دیا میں نے؟ کچھ نہیں، سو جاؤ تم سکون سے۔ فرحاد تب کر اٹھا اور کمرے سے جانے لگا۔ جاتے جاتے سگریٹ اور لائٹر بھی اٹھایا، جو فارا نے بخوبی دیکھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بستر پر گرنے کے سے انداز سے لیٹی۔ فارا بی بی، بس بہت ہو گیا، اب اور کتنا تنگ کرو گی اسے؟ اب تمہیں منانا چاہیے۔ اپنے اندر سے آتی آواز پر فارا گہرا سانس بھر کر اٹھی تھی۔ سارا گھر گھومنے کے بعد وہ لان میں ملا۔ بینچ پر بیٹھا سگریٹ سلگاتے ہوئے ایسا لگا جیسے خود بھی سلگ رہا تھا۔ فارا کے قریب آنے پر اس نے چہرہ دوسری سمت موڑا تھا۔ فارا اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کے ہاتھ سے اجلا سگریٹ لے کر پھینک دیا اور اس کا سگریٹ والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ فرحاد نے خاموشی سے اس کی کارروائی کو دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا دل میرے لیے اس رشتے کے لیے کب اور کیسے نرم پڑا، لیکن میرے لیے تم پہلے ہی اہم ہو چکے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جب نکاح ہوا تب سے، نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ میں کسی کی بیوی ہوں، یہ بات میں کبھی نہیں بھولی فرحاد۔ میں کبھی اس بات کو نظر انداز نہیں کر پائی۔ پھر یہ احساس مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ میرے شعور میں ہمیشہ یہ بات زندہ رہی، اور جب تم ملے میں اس شدید نفرت کا اظہار کرنا چاہ کر بھی نہ کر پائی جو مجھے کبھی مشکل وقت پڑنے پر تمہارے لیے محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنی گود میں رکھے اس کے کندھے سے سر ٹکائے بول رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں مدھم سا بول رہی تھی، حالانکہ فرحاد کو اس کی آخری بات پر اعتراض ہوا تھا۔ اتنا غصہ دکھایا تھا اور محترمہ کہہ رہی ہیں کہ نفرت نہیں دکھائی؟ ابھی نہیں دکھائی تو یہ عالم ہے، اگر دکھاتی تو جانے کیا ہو جاتا۔ فرحاد فقط سوچ کر رہ گیا۔ اس دن جو باتیں تم نے کہیں وہ بالکل صحیح تھیں۔ مجھے شاید اپنی تکلیف کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ندیم تایا کی وفات کا دکھ نہیں ہے۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے کھل کر میرے لیے فکر مندی دکھائی تھی۔ میں خود حیران ہوتی تھی کہ مجھے تو میری سگی ماں نے چھوڑ دیا تھا، اسے مجھ سے کوئی لگاؤ نہ ہوا، نہ میرے باپ نے میرے بارے میں کبھی سوچا۔ ان کو کیسے مجھ سے اتنی محبت ہوگی، جن سے ملے چند ہی دن ہوئے تھے۔ وہ اس کی ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے بول رہی تھی، اور فارا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو چکی تھی، جبکہ فرحاد کو لگا تھا ابھی وہ اور کچھ کہے گی۔ اور کیا؟ وہ سر اس کے کندھے سے اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بس اتنا ہی کہنا تھا؟ فرحاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ اور بھی ہے کیا؟ فارا الجھی۔ جب غصہ کرتی تھی تب تو بہت بولتی تھی، اب تمہیں کچھ یاد ہی نہیں آ رہا؟ فرحاد نے گہری سانس بھری تھی، جیسے کہ فارا سمجھ تو گئی تھی لیکن جان بوجھ کر بولی۔ کچھ نہیں، فرحاد نے کہہ کر اس پر سے نظریں ہٹا لیں۔ میرے لیے تمہارا ساتھ بہت اہم ہے فرحاد، اتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم بہت عزیز ہو مجھے۔ میں تمہارے ساتھ اپنے خوبصورت دنوں کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، ایک خوبصورت زندگی کا، جس میں پچھلا سب کچھ بھول جاؤں۔ میں فکروں سے آزاد ہو کر سکون سے سونا چاہتی ہوں، روشن صبح کو تمہارے سنگ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس دنیا میں میرا واحد رشتہ تم ہو، میری ہر خوشی تم سے وابستہ ہے۔ فارا کے بات شروع کرنے پر فرحاد نے اسے دیکھا تو فارا نے باقی بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری کی۔ فرحاد محصور کن ہوا تھا۔ یہ لمحے بہت خوبصورت تھے۔ باقی سب بھی تو ہیں۔ فرحاد نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے اس کے گال چھو کر کہا، وہ سب تم سے ہیں۔ فارا نے کہہ کر پھر سر اس کے کندھے سے ٹکا لیا۔ فرحاد نے جواب دیتے ہوئے اسے اپنے ہثار میں لیا تھا۔ اب تمہاری باری۔ کچھ دیر بعد فارا بولی، میں تو تمہیں کب کا یقین دلانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں، میں کیا کہوں؟ مجھے کیا پتا، مجھے سننا ہے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تو پھر سنو، جب تم ہاسپٹل میں تھی نا میرے پاس، اس وقت میرے دل میں تمہارے لیے فیلنگز شدید ہوئی تھیں۔ میں جو پہلے ہچکچاہٹ کا شکار تھا، تب لگا کہ واقعی تم میرے لیے اہم ہو چکی ہو۔ پھر بھی میں نے اس چیز کو نظر انداز کیا تمہارے لیے کہ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوتا وہ آخری ہوتا، لیکن میں نے یہ سوچ لیا تو میں پھر بہت ڈسٹرب ہوا۔ پھر سوچا ہم ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں۔ تمہیں منانا آسان نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا اپنے جذبوں پر۔ اور اشال سے اگر شادی کرنی ہوتی تو کب کی ہو چکی ہوتی۔ میں نے اسے بہت پہلے منع کر دیا تھا، لیکن وہ اس سب کو قبول نہیں کر پائی۔ لیکن اب اس کی بھی کوئی فکر نہیں، اس کی شادی بھی جلد ہو جائے گی۔ اور تائی اماں کو اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں اور انہیں ماننا ہی پڑے گا۔ ہمیشہ ان کی سنی ہے، ایک منوانے کا حق تو مجھے بھی ہے۔ فارا نے دھیمے سے کہا۔ دونوں خاموش ہو چکے تھے۔ بہت مشکل کے بعد وہ اس وقت تک پہنچے تھے جب ان کا اپنا وقت تھا۔ فرحاد نے اس کے ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھ کو اپنی طرف کیا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ لیا۔
तमानियत से आंखें मूंदे फारा ने उस बोसे की पाकीज़गी को महसूस किया था। आई मिस यू मेरी जान। फरहाद ने उसके माथे पर बोसा लिया। आई मिस यू टू। फरहाद को उम्मीद नहीं थी कि वो ये कहेगी। इजाज़त है। उसकी सांसें फारा की सांसों से उलझी थीं जब वो खुद को रोक कर भूला। लेकिन यहाँ नहीं, कमरे में। फारा धीमे से सर हिलाते हुए झींपी हुई बोली तो फरहाद कहका लगा गया। सलीम न्याजी को देर से ही सही अपने कर्मों का किया मिल गया था। अल्लाह ने उसकी रस्सी खूब दराज की थी, उसे सुधरने के मौके भी दिए, लेकिन उसने उन सब मौक़ों को गंवा दिया था और अब अपने अंजाम पर पहुंचा था। उसकी लाख कोशिशों बेबहा पैसे लगाने के बावजूद भी उसे ताउम्र जेल की सज़ा सुनाई गई थी। देखने सुनने वाले सब हैरान थे, ऐसा कौन था जो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि बड़ी से बड़ी रिश्वत भी काम ना आई थी। लेकिन ऐसा हुआ था। वो जेल की सलाखों के पीछे बैठे सलीम न्याजी के वहमो गुमान में भी फरहाद मलिक का नाम तक न आया था। वो अपने सब मुखालफिन से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मुखालफिन ने भी अपने बदले खूब लिए थे। वो डूब रहा था तो उसे डुबाया गया था। सियासत ऐसी घिनौनी चीज़ है, जिसका नाम का सूरज चमकता है दिन उसी का होता है, और जिसका नाम का सूरज डूब जाए वो रात की तारीकी में ऐसा गुम हो जाता है कि अगला दिन निकलने पर भी नहीं मिलता। सलीम न्याजी भी रात की ऐसी तारीकी में गुम हो चुका था। फरहत बेगम को मालूम था इस बार वो अकेली हैं। पहले तो दोनों बेटे उनके हमनवा थे, जिस वजह से उन्होंने खुलकर अपनी नफरत का इजहार किया और अपने शौहर की नाराज़गी मोल ली। उन्हें क्या पता था कि वक्त यूं भी बदल जाएगा। वो अपनी अना के ज़म में इस कदर डूबी कि ना ख़त्म होने वाला पछतावा ले बैठी। और अब वो किससे लड़ती, किसके लिए लड़ती? बेटी की खुशी थी अब वो। फिर भी अपनी मनमानी की थी उन्होंने। वो अलग बात है, वो पहले की निस्बत कमज़ोर थी, सो बेहतरी उसी में लगी कि बेटी की खुशी में खुश हो लिया जाए, बजाय कि अपने बंद कमरे में अकेले जलने के। उन दोनों के वलीमे की तकरीब लाहौर में तय पाई थी। फारा और फरहाद दोनों के चेहरे हकीकी खुशी का इक्कासी कर रहे थे। फरहाद की मोहब्बत में वो मज़ीद निखरी थी। मुस्कुराती थी तो आंखें उस मुस्कुराहट का साथ देती थीं। कोई फिक्र ना थी अब। ज़िंदगी में पहली बार फरहाद की संगत ने उसे सुकून दिया था। जब से होश संभाला था सुकून ही तो मुयस्सर ना था। तुम्हें तो शुक्राने के 100 नफल पड़ने चाहिए। अल्लाह अल्लाह करके मौका है तुम्हारी ज़िंदगी में। फरहाद जो कोट के बटन बंद कर रहा था, फ़हीम भाई की बात पर कहका लगा गया। हंस लो, फिर यही हाल होना है। कर लो जितने फैशन करने हैं अभी। फ़हीम भाई अपने बेटे को पकड़े बहला रहे थे। अभी तक वो तैयार ना हुए थे, क्योंकि अभी तक बेगम तैयार होकर ना आई थी। उनकी बात सुनता फरहाद मुसलसल मुस्कुरा रहा था। लाएं फ़हीम मुझे दहीं से, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। फरहाद, फारा आ गई है पार्लर से, तुम चलो, फिर उसे लेकर आहिस्ता आहिस्ता, हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। भाभी अंदर आते हुए जल्दी से बोली। और अम्मा? फरहाद खुद पर आखिरी निगाह डालकर बोला। अम्मा अपने कमरे में थी, उन्हें भी लेकर जाना है। उनकी बात पर सर हिलाकर वो अम्मा के कमरे में गया। क्या हुआ अम्मा? फरहत बेगम जो नदीम साहब की तस्वीर आंखें नम किए देख रही थी, उसकी आमद पर चौंकी और आंखें साफ करने लगीं, लेकिन फरहाद उनके आंसू देख चुका था। क्या हुआ? फरहाद उनके साथ जा बैठा और मोहब्बत से अपना बाजू उनके गिर्द फैलाते हुए दोबारा पूछा। कुछ नहीं। वो आंसू तो साफ कर चुकी थी, लेकिन आवाज़ रोने का साफ बता रही थी। बाबा याद आ रहे हैं? फरहाद ने बाबा की तस्वीर पर नज़रें जमाईं। वो तो हमेशा ही याद रहते हैं, भूलते ही कब हैं? अम्मा संभल कर बोली, लेकिन लहजा शौहर के जिक्र पर धीमा हो गया था। अब तो यही ख्वाहिश है कि रोज़े महशर जब मुलाकात हो तो मुझे माफ़ कर दिया हो उन्होंने। उनके लहजे में उम्मीद और दुख दोनों थे। ज़रूर कर दिया होगा। बाबा आपसे बहुत मोहब्बत करते थे अम्मा, मुझे यकीन है वो आपसे नाराज़ नहीं होंगे। उसकी बात पर वो खामोश रहीं। अच्छा, अब मुझसे तो नाराज़ नहीं है ना? फरहाद ने मौजू बदला। नहीं। उन्होंने उसका हाथ थामा था, अंदाज में ममता झलक रही थी। और फारा से? किसी उम्मीद के तहत फरहाद ने पूछा। वो तेरी खुशी है तो मैं भी तेरी खुशी में खुश हूँ, और तेरे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तेरी खुशी हमेशा सलामत रखे। फरहाद बेख्तियार खुश हुआ था। उसे अम्मा की तरफ से इस बात की इतनी जल्दी उम्मीद ना थी। हालांकि ये सब उन्होंने उसके लिए कहा था, लेकिन फारा के लिए अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं कहा था उन्होंने, और ये एक खुश आइंद बात थी, और उसे यकीन था कि वक्त के साथ फारा और अम्मा का रिश्ता भी बेहतर हो जाएगा। तुम अभी तक यहीं हो? मैं तैयार होकर बाहर गया तो मालूम हुआ कि जनाब अभी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। लोग आना शुरू हो चुके हैं हॉल में, और यहाँ दूल्हा साहब बजाय मेज़बानी करने के घर पर ही हैं अभी तक। फ़हीम भाई गुस्से में दरवाज़ा खोलते साथ ही शुरू हो चुके थे। जाओ तुम फारा को लेकर, मैं अम्मा को लेकर आता हूँ, बाकी सब गाड़ी में बैठ चुके हैं। उनके कहने पर वो तेज़ी से बाहर निकला और गाड़ी तक गया। वहाँ भाभी उसे देखते ही शुरू हो गई। हद है फरहाद,
طارق انکل کا فون آیا, کہاں ہیں آپ لوگ, مہمان آ رہے ہیں, ابھی تک تو تم پہنچے ہوتے وہاں پہ. وہ فارا کے ساتھ بیٹھی تھیں. فرحاد خاموش ہی رہا. ہال پہنچ کر ان دونوں کی خوبصورت طریقے سے انٹری تھی. فرحاد فارا کا ہاتھ ہمیں آہستہ سے چلتے ہوئے اسٹیج کے جانے پڑ رہا تھا. لوگوں کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی. وہ جا کر بیٹھی ہی تھے کہ اسے فارا کی ہلکی سی آواز سنائی تھی. یہ دلہن بننا بہت مشکل ہے, شکر ہے ایک ہی دن تھا ہمارا, وہ ایک تائی ہوئی بولی تھی. فرحاد کا کہکا نکلتے نکلتے رہ گیا. کوئی نہیں, ابھی صرف 2 گھنٹے اور ہیں. فرحاد نے اسے تسلی دی. لیکن 2 گھنٹے کہاں, 3 سے 4 گھنٹے لگے. فوٹو شوٹ نے اتنا ٹائم لے لیا, پہلے ان دونوں کا, پھر دونوں کا الگ الگ, پھر پوری فیملی کے ساتھ, اور آخر تک فارا اس بھاری ڈریس سے تھک چکی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گھر جا کر جلدی سے اس بھاری ڈریس سے جان چھڑائے. تھوڑے سے انتظار کے بعد یہ وقت بھی آ گیا تو فارا نے شکر ادا کیا. اپنے کمرے میں پہنچتے اس نے پہلے چینج کیا, جو ایک مشکل مرحلہ تھا. پنز اور سیفٹی پنز کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا, اور جب تک فرحاد آیا وہ ڈریس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو چکی تھی. یہ کیا, تم نے چینج کر لیا؟ فرحاد کو امید نہ تھی کہ وہ اس کا انتظار کیے بغیر چینج کر لے گی. کیوں, کیا ہوا؟ پلین لائٹ گرین سوٹ میں کھڑی وہ پوچھ رہی تھی. پہلی بار دلہن بنی تھی اور میں نے غور سے ہی نہیں دیکھا. فرحاد کے لہجے سے شکوہ جھلکا تھا. اور وہ جو اتنا لمبا فوٹو شوٹ کیا آپ کے ساتھ, تب دیکھ ہی رہے تھے آپ. وہ فارا ہی کیا جو بدل جائے, لیکن کچھ تو بدلا تھا. وہ تم سے آپ پر آ گئی تھی. لیکن پھر بھی تب تو اتنے لوگ تھے, اکیلے میں بات کچھ اور ہوتی ہے. میں نے اتنا کچھ سوچا تھا, یہ کہوں گا, ایسے تعریف کروں گا. فرحاد کا افسوس کم نہ ہو رہا تھا. ویسے اس کا ایک حل ہے. وہ فرحاد کے قریب آ کر اس کا کوٹ چھیڑتے ہوئے بولی. کیا؟ فرحاد نے اس کے گرد حصار باندھ کر بیچ کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے پوچھا تھا. یہ کہ جب تصویریں آئیں تو آپ ان کو سامنے رکھ کر میری تعریف کر سکتے ہیں. وہ خود ہی کہہ کر ہنس دی تھی. فرحاد بھی مسکرانے لگا. یہ بھی ٹھیک ہے, ابھی کے لیے ہم